तो मेरे से कोई पूछता है चिट्टा जैसा गाना बनाओ तो चिट्टा सुन ले जाके, क्यों मेरे से दोबारा वो बनवाना चाहता है। इंडस्ट्री में तो कोई मेरे को काम घंटा नहीं देने वाला, ये तो मेरे को पक्का पता है। पीपल इन द इंडस्ट्री सांप बेसिकली, वो भी दो मुंह है। जैसे केंड्रिक और ड्रेक का देख लो। I don't care what people say, but Kendrick won fair and square, and I was really happy about it. But do you feel sorry for Drake at all? No, No? he had it coming. He had it coming. So you are very responsible about the lyrics you are writing. Most of the times, yes. कभी-कभी मैं कर देता हूँ line cross where I'm like, बस भाई अब कितनी response. This interview is gonna be legendary because when I'll make it, people gonna look back and be like, damn. Hey guys, welcome to Chalchitra Talks. मेरा नाम दिशा है and this is Zomato presents Discovering Music. In this episode, I got to talk to Prabdeep about the mindset of an artist, the drama between Kendrick and Drake, and why Desperate Housewives is his favorite show. I had the most beautiful and intimate conversation with Prab about what it means to be an artist. With that, let's dive into this conversation with Prabdeep. Hi Prab, welcome to Chalchitra Talks. Thank you. How are you doing? Very well. I'm feeling extra confident today because I'm wearing a very, very nice t-shirt. I also want to show the audience. Yeah. I don't know if this is a good year, but can you explain what was the thought process behind it, and especially what does this mean? Shit, I forgot. I'll tell you. Anger. No, it's not anger. No, it is anger because I want it to. It's not anger. No? It's According to Google Translate. no, the emotion behind was something else. I remember it. बहुत सा अभी तो 3 मर्च और कर दी हमने उसके बाद. You know, just designing wise, I think I was not involved in it fully because my creative director and stylist, she takes care of these designs. तो मैं उसको space देता हूँ पूरा, you know, and she always surprised me. Okay. Look at the color of this, the fit. Yeah. Plus this was a collaboration between Seed Store. I think the front they did and back we designed it from our designers. But the thought process was like having the heart. You know, the heart is it's half growing with flowers, Yeah, and the yeah. other half is still kind of empty. So we kept space for the next couple of projects to like full heart आएगा वो भी. So that was the thought process, you know, give space like this will become the Easter egg, not the next one. Yeah. Okay, but in general, I can say I love your outfit today also, and you're just in general very aesthetic and you're very conscious about your fashion choices. How is that? Like, is that a conscious choice या हो जाता है? It became a conscious choice after a point. Earlier I had this, मतलब मेरा ये thought process था शुरू से ही कि ना, it's not about what's outside, it's what inside, you know, like मेरा शुरू से वो रहा है. But later on, like doing, like wearing clothes जो लोगों ने अच्छे से डिज़ाइन किया, उतना ही काम डाला है जितना मैं अपने म्यूज़िक में डालता हूँ, उसी सेम फीलिंग से कपड़ों में काम डाला है. सो आई एन्जॉय लाइक वेयरिंग इट एंड आई रियलाइज्ड इट, व्हाट यू वेयर इज हाउ यू फील इनसाइड. Like it shows what kind of personality you have, like your clothes. It can be very simple thing, you know. My dad used to wear kurta pajama. It showed like what kind of person he was. Yeah. So I believe in that. And अगर आप बोल रहे हो कि मेरा स्टाइल अच्छा हो रहा है, मतलब मैं इंसान भी अच्छा बन रहा हूँ धीरे धीरे. So it's a But good it thing. keeps evolving with every album. Always, like me and my team, my new team, like we have this motto of just keep evolving. We don't want to stop. Don't have, मतलब मेरे को तो आज तक नहीं कभी फीलिंग आई कि
मैंने कुछ बनाया और like okay this is 100% like I'm fully satisfied with it. Never. And I don't want to have that feeling because then I'll stop. I think like then I'll just retire after that. I won't have that feeling of I can push like go another 10% on the next one. Nice. Yeah. So, like when we were discussing this merch, Vaibhav gave this to me, ये इसका t-shirt मैंने चुराया, तो उसने कहा था कि शायद ये this means anger, and we also confirmed. So, do you think anger is like an integral part, a very important emotion that fuels rap music? Controversial है वैसे. अच्छा. It does like basically मैं hip hop का background थोड़ा सा बता देता हूँ कि it started off in New York where they still have gun culture, right? Like they wanted to settle beefs with battles. So of course there is मतलब वो एक angle है उधर कि anger release कर लो यहीं पे ही. Let's not take it to the streets anymore. In our society it's very different. Like we took that part कि let's release the anger, but हमने सिर्फ गानों तक नहीं रखा उसको. In what ways? पर्सनल भी चले जाते हैं. Yeah. मतलब मेन हिप हॉप का कोर तो वही था ना कि लेट्स सेटल इट इन द आर्ट. सो व्हेन यू मीट नेक्स्ट टाइम लाइक देयर इज नो बैड ब्लड, सो यू कैन मूव फ्रीली, यू कैन, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री तो छोटी सी, हर इंडस्ट्री छोटी है अगर देखा जाए तो. यू कीप बम्पिंग इनटू पीपल राइट. सो इट्स बेटर लाइक कि थोड़ा सही रहे, अपने एंगर गानों में निकाल के ख़त्म कर दिया जाए और आगे ना बढ़ाया जाए. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस. I think like when you were saying कि personal चले जाते हैं, I think you're referring to the entire disc culture that comes with the rap scene. हाँ मतलब पर्सनल इन द सेंस लाइक गाने में जाओ पर्सनल, नो प्रॉब्लम, गो एज डीप एज यू वांट टू. लाइक वो उधर तो होता ही यही है ना कि पिंच दैट नर्व, यू गो वन स्टेप बियॉन्ड, यू से समथिंग विच वो सामने वाले को, सिर्फ तुम्हारे ओपोनेंट को ही पता है. ऑडियंस भी भाड़ में गई इस टाइम पे कि आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, दैट आई एम फाइन विद. बट व्हेन इट्स पर्सनल मैलिस वेयर यू आर like blocking other artists from doing what they can do, you know, like whether it's blocking somebody from the industry, you know, getting in other people's way. And unfortunately like I'm kind of in this game right now. Like I realized it, like काफ़ी टाइम मैं denial में भी था कि I'm not playing this game that you are playing, but I'm a part of this. It's a necessary evil, no? मतलब करना ही पड़ेगा. हाँ करना ही पड़ेगा. एंड आई एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव इन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड हाउ इट्स गोना अफेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन और द नेक्स्ट आर्टिस्ट दैट हु गोना कम, एंड हाउ like how many doors can I open for the next ones so they don't have to go through this basically. I think of it from this perspective also कि जैसे Kendrick और Drake का देख लो, तो out of that entire beef came such great songs. So I feel like it also fuels innovation and creativity. अरे ऑडियंस तो बैठी है ना मसाला लेने के लिए, उनको तो, उनके लिए तो सही है. केंड्रिक कितने टाइम से गाने नहीं निकाल रहा था कि हाँ, वाओ लाइक अ बैंगर आफ्टर बैंगर, यस लेट्स गो. उनके लिए तो मजा ही है. बट अगेन लाइक केंड्रिक एंड ड्रेक का बीफ बड़े अलग, that was a very different approach for me personally. I don't know how other people see it, how my fraternity people see it also. मेरे लिए उसको सही और गलत था देखना कि you have two different, it was a clash of two ideologies. एक बंदा जो बहुत fame driven है, जो बहुत hits driven है, like it's more, Drake is more outwards, yeah, right? Like he has to be number one every time he comes out. Kendrick is very private. That is the ideology I support personally, because I either go out and cater outside world, or I can cater like what's in my surrounding, like my family, my loved ones. Take care of them first. Take care of my team first. So I believe in that more. And I don't care what people say, but Kendrick won. Fair and square. Like in this is like if you drop the last track, you won. You know, so he won. And I was really happy about it. Like, okay, I'm on the right path because I support that idea
of leading a life. Do you think then artistic integrity one? Oh yeah, for sure, Yeah. 100%. He's through and through like artist, because like I think his last album people overlooked. Like now they are jamming on Not Like Us, but आप देखो सुनो Mr. Morale and Big Steppers. Yeah. Like he's being so vulnerable कि अपने मैंने भी that's the most difficult thing to come out with when you are being very open about I f***ed it up and I hurt people. I hurt my closed ones and now they are far. It's very difficult to say that. Like I said it in my tracks and I know how it feels and I know how it make people who are connected to those stories, how it make them feel, you know. So integrity जीती है, ये तो होना ही था. It was inevitable. I think Kendrick was also कि मेरे को ना ऐसा लगता है कि उसको बहुत टाइम से करना था ये. He was busy doing other shit. Oh, so you In think life. it's premeditated, मतलब? Oh yeah, for years. For years. Yeah, उसको उसकी life. That's what he said in the like. I followed it closely, where I was not listening to it from a fan point of view. I was listening to it from a human point of view, where he was talking about, do you think rap is my life? Like I got a son to raise. Yeah. You know, so that's where I think, okay, like you have other shit to take care of right now. Yeah. You'll be like, अब मैं free हूँ, अब बता. You know, I really f- with that Yeah. thing जो उसने किया. Yeah. But do you feel sorry for Drake at all? No. No? He had it coming. He had it coming. That's his karma, like biting him. Now he's dropping songs. He dropped like 100 gigs of doing all that. Anyway, I don't really support Drake. I don't support people who support Drake. Oh, okay. I don't support that ideology at all. I don't know, like even if you see me as an enemy, like that's your loss because I'm gonna sit on top one day. And तुम अपना रिलेशन मेरे साथ खराब कर रहे हो. अब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं किसी के साथ रिलेशन खराब कर रहा हूँ. आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट वेयर आई एम हेडिंग. सो यू वॉच वेयर यू आर गोइंग. सो I'm with my ideology fully. I support I believe in my shit. I believe in my idea of leading the life. So yeah. ये थोड़ा बहुत narcissism necessary होता है for बहुत rap. जरूरी है. Not rap. To In lead your general, life. yeah, like, yeah. For years, like I was like मैं बहुत डगमगाया हूँ अपने बिलीफ को लेके कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा. There is a difference between being narcissist and being confident about your idea. It's working for me. It's working for my family. It's working for the kind of work I'm doing it. And eventually it's gonna work for people who are listening to me. It's gonna make their life better. Yeah. So I don't see it as narcissism. Narcissism is where like you come up to me and be like, you did this wrong, and I go like, no, I'm not wrong. I think about it a lot. Like I gave a lot of time thinking about this Kendrick and Yeah. Drake scenario, and I saw similarities between like the whole situation and what's happening in my life. वो होती हैं scenarios. You come across a lot of people in the industry. सांप basically. वो भी दो मुंह है. Oh, lovely. Yeah. But like, if you could elaborate more on why do you think, not Drake in particular, but काफी artists का ऐसे होता है ना कि eventually downfall आ जाता है. Why do you think that happens? Like from your perspective as a rapper. Downfall तो यार हर एक के like वो तो inevitable है. You can't be just like go up. Like even Dr. Dre, Snoop Dogg, everyone had like it's a wave. Career is not like just up. Yeah. You have to go through the downfalls and matlab, I'll give you like a metaphorical example here. Have you been to the mountains? Yeah. पहाड़ गए हो? हाँ जी. जब आप एक ऊंची पीक चढ़ने जाते हो तो आपको बहुत सारी छोटी पीक्स चढ़नी उतरनी पड़ती है, right? It's not, you're not going always up. You're going down, you're going up.
That's how the career is. So there is nothing new. Like if just recognize it. I take this downfall whenever I have my downfall. When people say, "Oh, इसका तो हो गया तो खत्म हो गया," 4 बार बोल चुके ऑलरेडी मेरे करियर में. 10 साल हो गए मेरे को ये करते करते. Yeah. You know, मैं जब मेरा डाउनफॉल होता है ना, मैं चिल मारता हूँ. Because I had nothing to do at this point. Yeah. I have no pressure at all. People think I'm done. I have nothing to lose anymore. I'm probably gonna go broke in like month or 2. Let me just like have fun with this much amount of money I have left. This was this time, like before coming here. Like my numbers went down. My amount of shows I was doing went down. Happened with like whatever happened with the previous team and all. So I started like taking a break, and then when I pushed myself against the wall, कि अपने आप को ही लगा देता हूँ मैं, बता अभी क्या करेगा, अब तेरे पास कुछ नहीं है, you are stripped down, you have from your accomplishments, you have no fan base at this point, there is no one who's supporting you, what are you gonna do now? I go back in the studio and I make shit like DSP. Nice. So do you Every think time. like, your best music has come from the place of a downfall? Every time. अरे, I love nice. it. और जब नहीं आ रहा होता मैं अपने पैसे दे के कहीं और निकल जाता हूँ. मैं खुद ले आता हूँ. क्योंकि that's the best, like when you have nothing, that's when you create your best work. I believe in it. Like it always worked for me. ऐसा करना मत भाई. Please, फिर बाद में मेरे को मत blame करना है, मेरे लिए काम किया है. हाँ. So does it mean कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है? नहीं नहीं, दिल सही है भाई. दिल टूटा नहीं है, जेब टूटनी जरूरी है. जेब में ऐसे छेद मारो, कटवाओ जाके, सारे पैसे निकालो और वो करो, और इंटरनेट बंद कर दो. ये 2 चीजें करनी बहुत जरूरी है. स्टॉप. I had a track with Faris Shafi, you know, on this. I had a great experience because I learned a lot from him. It was really hard to get like hold of him because he used to just turn on internet for an hour a day. Wow. And you don't know when he's gonna turn his internet. So I have to keep like this double tick check करना पड़ रहा है मेरे को बार बार कि आया है ऑनलाइन कि मैं मांगू भाई दे दे यार वर्स कहाँ पहुंची कहाँ नहीं, you know. But he was very like every time he came online, like I felt like he was just like talking to me. His mind was कहीं और नहीं था. और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि एक बारी मैं भी करके देखता हूँ थोड़ा इंटरनेट. डिस्कनेक्ट पूरा. डिस्कनेक्ट भी नहीं, मैं मतलब मैंने करने की कोशिश करी, बाद में देखा कि मेरा पूरा स्टूडियो इंटरनेट के बिना चल नहीं सकता है. मैं फंस गया फिर उस चीज़ में. बट कुछ काफ़ी हद तक मैंने कम कर दिया देखना कि लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री किधर है. एंड आई जस्ट लाइक zoomed into my creative process. Like step by step. इस गाने में forget about the album. इस गाने में अभी क्या चाहिए, कौन चाहिए, उनको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 9 आर्टिस्ट हैं अलग अलग जिनके साथ कोलैबोरेट किया. एंड आई डिडंट गेट द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड in any of these collaborations. Oh, I so you talked were to handling everyone. it. Achha. Yeah, artist to artist. I called them, got the verses. मतलब मैंने सीधा मास्टर्स दिए हैं मैनेजमेंट को, बीच में किसी को नहीं डाला बीच में. And I learned in this process also कि when you have to do this, you really have to cut off. We have someone very special with us today that I want to introduce you to. His name is Rohit Kumar. He goes by the artist name RD Hustle, and he has something very special prepared for you. So, shall I introduce you? Yeah. क्या हाल है भाई? आ जाओ यार. हाय, मेरा नाम रोहित है. मैं जयपुर से हूँ. मैं जोमेटो में भी काम करता हूँ और काम करता हूँ, उससे गाने भी बनाता हूँ और मतलब सब चीज़ कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, गाने भी बना लेता हूँ. और इसमें क्या पढ़ रहा है भाई? मेरी कॉलेज चल रही है सर. अच्छा, क्या पढ़ रहा है कॉलेज में? मेरी 3rd ईयर है BA. मन करता है पढ़ने का? नहीं करता. छोड़ दे फिर. छोड़ दूँगा. हाँ, घुस जा म्यूजिक में. हाँ, म्यूज़िक में. हाँ,
भाई अगर ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज मेरे पास बताइए, तूने बोला था मेरे को। नहीं सुनाओ फिर। हाँ, मैंने मतलब अभी मतलब है ना ऐसे ही लिखा था कि अब परेशानियों का पड़ता बॉम्ब, खुद की कमाई से लेना मुझे होम, जब वक्त मेरा आएगा मैं बदल दूंगा कौम, अब फिक्र करने वाली मेरे पास मेरी मॉम, अब फिक्र नहीं करने वाले अब बोलते हैं कौन, अब मुझे ये ढूंढना कि कितने खास मेरे, अब दुख ये बथेरे काली रात करके ही मिलते हैं सवेरे, अब कैसे अंधेरे दगा दे रे मैंने सपने जला दिए, कपड़े नहीं लिए मैंने गाने रिकॉर्ड किए, पहले 2 GB के फ़ोन में, फिर खुद से पूछा कौन मैं, माइक पे मैं टूटता हाँ खली वाले जोन में, ऐसे कुछ लिखा था सर मैंने। नाइस ब्रो। हाँ, और तो डिवाइन सुनता है ना, हाँ है ना, इंस्पायर्ड है डिवाइन से, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत सही बंदे से इंस्पायर हो रहा है। हाँ, मैं डिवाइन को है ना मतलब उनके है ना हिट करती है मुझे लाइनें है ना काफ़ी, और समझ रहा हूँ। हाँ, और स्टोरी भी थोड़ी ऐसी है ना, मैं वो भी अपनी माँ के लिए है ना, वो समझ रहे हो, तो ये चीज़ है। बिल्कुल भाई, बहुत जरूरी है। सही है, मैं तेरे को बीट भेजूंगा। हाँ, तो करिए, ये गाना बीट पे कर दिया तो मैं हाँ बिल्कुल भाई कर देंगे। हाँ डन। रोहित। हाँ, आरडी हसल। आरडी हसल, हसल क्यों रखा तूने अपना नाम? वो क्या है पता है, मेरा पहले है ना आरडी नेम था, लेकिन है ना उसने उस नेम से है ना बहुत सारे आर्टिस्ट थे, और वैसे मैं हसल जो है ना निप्सी हसल, हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो मुझे बहुत सही लगता है वो बंदा है ना। वो तो है भाई, हाँ, लेजेंड। तो for sure। हाँ, हसल इन द हाउस मैंने उनका गाना सुना था, तो है ना वो तगड़ी वाइब है उनके गाने में, फुल पावर भाई। हाँ, ये चीज है। सुनता है पावर है तो फिर। हाँ बिल्कुल भाई, और आपके भी गाने सुने हैं, समाज मेरा फेवरेट है। क्या बात है। हाँ, सही। इक्का भैया के साथ है जो गाना, और आपकी जो अभी रफ्तार भैया के साथ एल्बम आई थी पूरी, हाँ ईपी, वो भी मैंने सुनी थी। बढ़िया भाई। आपके गाने सुनता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही है भाई। हाँ, मैं जब जोमेटो पे है ना ऑर्डर देने जाता हूँ ना, तब आपके गाने सुनता हूँ, हेडफोन मेरे नेक बैंड में लगा के आपके गाने सुनता हूँ, और बहुत सारे आर्टिस्ट सुनता हूँ। इन्होंने एक म्यूजिक वीडियो बनाया था जो हमें दिखा रहे थे, ये लाइक यू कैन शो इट टू हिम। आप म्यूजिक वीडियो दिखाओ ना जो आपने। हाँ, तो इन्होंने प्रॉपर एंड टू एंड लाइक ब्लैक एंड व्हाइट में लाइक फुल कोरियोग्राफी के साथ चेक कराओ भाई फिर। हाँ, और मैंने एक गाना और बनाया था, मतलब है ना उनके लिए जो पूरे देश के लिए है ना, उसके लिए गाना बनाया था, वो भी सुना दूंगा मैं आपको। ये मैंने है ना पूरी स्टोरी बताई है इसमें। अब कैसे मैं सुनाऊं ये कहानी मेरी, अब पल भर की जिंदगी पर ये भी दगा देती, अब कोई नहीं है खास सिर्फ वक्त का पास, अब डूबने लगी है मेरी आस, ये पल भर की बात, ये दुख दर्द पीड़ा कभी कम नहीं होगा, असल किया मैंने कभी दम नहीं तोड़ा, ये कांटे भरे रास्तों से मुंह नहीं मोड़ा, सुख थोड़ा थोड़ा लेकिन दुख का अंधेरा, लेके बस आस खड़ा हूँ अकेला, जो बड़ा खाना ठंडा वो जल्दी पकेगा, अजाने मेरा बाप मुझे कितनी गालियां बकेगा, मुझे नहीं पता अब मिली अब सजा, मैं हार नहीं हूँ, सच बोलूं पूरा दुख मैं बता रही हूँ, सच बोलूं माँ बाप का सहारा मैं हूँ, ये जंग मेरी खुद की मैं भागा नहीं हूँ, अब कैसे मैं भागूं, अब बैठे मेरे पास पड़ा भाई तब तो दुख को मैं बांटूं, किसी ने भी कभी नहीं पहुंचे मेरे आंसू, अब झाटू भी बोलता है चलना बेझाटू, अब झाटू भी बोलता है हाँ, अब जो भी सब निकले निकले मेरे दिल से, दोस्त और दुश्मन अब घात करे मिलके, हाँ करती वो नफरत मैंने प्यार किया दिल से, अब किसी के भी साथ मैंने दगा नहीं करा, तभी तो मैं हेट का वजह बना, पैसों के लिए खदा बना, पाप का भरा घड़ा, माँ को देता गाली बाप उससे भी लड़ा, मेरा सगा भाई मेरे लिए सांप बना, हाँ अब जिंदगी भी देती है दगा, आ जाता उससे प्यार लेकिन मंगती वजह, अब टूट गए सारे मेरे ख्वाब, देखे खुली आंखों से और देखे हर रात, अब आसमां को देख के मैं लिखता हूँ किताब, अब पूरा मेरा हाल पूरे 11 साल एक कमरे में रहे, अब माइक पे मैं बोलता जो दुख मैंने सहे, अब भूला नहीं हूँ तानों को जो लोगों ने कहे, हमें लिखता कहानी, अगर इन घर के लोग तब होती बदनामी, सच बोल के देख तब होती बदनामी, झूठ बोल के देख सभी बातें इनामी, समस्या से खेल जब आती सुनामी, अब कौन करे किसका भला, अब कैसी है भला, जब पैसे नहीं होते जेब में सब देते हैं सलाह, अब कौन किसका सगा ये वक्त तो बता, अब सामने के सब बता है रुक के होता नहीं पास, कोई आता है जब दुख, माँ ने बोला बेटे परेशानियों से जाना नहीं कभी तू चुप, अब मेहनत इतनी करना कि वो हो जाए चुप, अब भाई नहीं रहे जो
बांट लेंगे दुख लुक अब होना नहीं सुस्त अब गाने में नहीं आता ब्रो ये उनका फ़ोन आ रहा है, ये जोमेटो वालों का ही आ रहा है, ये जो अमन सिंह थे ना। मस्ती की टिकट हाँ, ये पार्ट सुनिए, है ना, यही मेन पार्ट था इसका, यही वाला उनका फ़ोन आ गया। कौन किसका सगा ये वक्त तो बता अब समय ने कैसा बदला है रुख के होता नहीं पास कोई आता है सब दुख अम्मा ने बोला बेटे परेशानियों से जा हेलो, कौन बोल रहा है? रॉन्ग नंबर। टेंशन में आ गया। जाना नहीं कभी तू चुप अब मेहनत इतनी करना कि वो हो जाए यार कौन बोल रहा है? रोहित से बात हो रही है? नहीं, प्रदीप से बात हो रही है। रोहित ने अपना नंबर मेरे को दे दिया अब। ओके, तेरा नाम तो अमन लिखा हुआ आ रहा है इधर, झूठ बोल रहा है तू मेरे को। ट्रू कॉलर तो फॉर्स हो गया। अच्छा, क्या करूँ फिर? सर बस वही उसको अलाइन करना था आपको कि होटल की बुकिंग के बारे में वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। मज़ा आ गया तेरे से बात करके अरमीत। चल यार, मैं गाना सुन रहा हूँ इसी का ही, ठीक है ना? करते हैं तेरे को हम कॉल अभी। चल फिर, फुल पावर, ओके बाय। बंदा भाई बड़ी चुल है इसमें। वो फेवरेट वाला पार्ट वही सुन रहा हूँ। नहीं रहे जो बांट लेंगे दुख लुक अब होना नहीं सुस्त अब गाने में नहीं आता मुझे हुक अब फील करना ब्रो फिर मिलता और सुख हाँ अब परेशानियों का पड़ता बम हाँ खुद की कमाई से लेना मुझे होम जब वक्त मेरा आएगा मैं बदल दूंगा कौन अब फिक्र करने वाली मेरे पास मेरी मौत फिक्र नहीं करने वाले अभी बोलते हैं कौन अब मुझे ये ढूंढना कि कितना खास मेरे अब दुखी के बथेरे अकाली रात करके ही मिलते हैं सवेरे अब कैसे अंधेरे तक तेरे मैंने सपने चला दिए और कपड़े नहीं लिए मैंने गाने रिकॉर्ड किए पहले 2 GB के फोन में पर मुझसे पूछा कौन में बाइक पे मैं टूटता खली वाले जोन में हाँ कितना घूम चूसा फिर भी आज भी जुनून में हमस मेरे मूड में हाँ सोया नहीं सुकून में हाँ कभी नहीं जुनून में हाँ मेहनत मेरे खून 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 में या पैसा फेस जैसे रंग वैसे ब्लैक डेज लेकिन दिन से मैं काला नहीं अब दिल टूट गए जिन्हें मानते थे अपना वही हमें भूल गए तो वक्त ने दी गाली हम पीछे छूट गए तो वक्त ने दी गाली हम पीछे छूट गए तो वक्त ने दी गाली हम पीछे छूट गए बहुत बढ़िया भाई, हाँ, बहुत बढ़िया। आई होप यू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। आई रियली डू। हाँ, कर भाई, बढ़िया। मैं तेरे को भेजूंगा, बीट भेजूंगा, हाँ। तो उस पे रैप कर, ठीक है, पक्का। थैंक्स भैया। बढ़िया भाई, अमन से बात कर ले। ओके, आपको वो फोमो नहीं होता कि आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री? नो, I live in Goa. I left this. Why do I wanna know? The more I know, the more I have a very, मतलब मेरा दिमाग की क्षमता बहुत कम है, मैं इतना जानता हूँ। I am not like super intelligent person. I'm not a genius. There is a term called skenius. You know what it is? No. Skenius is like group of geniuses. So I have a skenius. तो मैं उसमें सरवाइव कर रहा हूँ। पीपल अराउंड मी आर जीनियसेस, लुक एट दिस मर्च। तो मेरा बहुत ऐसे कम क्षमता वाला दिमाग है, उसमें मैं ज़्यादा चीज़ें डाल देता हूँ तो वो मेरे लिए भी ख़राब होती हैं पहले तो, फिर मैं दूसरों के लिए भी कर देता हूँ। कोई मेरा स्टेट ऑफ माइंड ख़राब है और कोई मेरे साथ अड़ जाता है तो मैं सब कुछ साइड पे रख के बोलता हूँ आजा, ऐसा होता है फिर। So it's better for the world also. And like I understood, my nephew is listening to me, my cousins are listening to me, there are kids in my streets who are listening to me and कुछ तो responsibility है मेरी, सोसाइटी के लिए होना हो, इन बच्चों के लिए तो है, तो मेरे को सही स्टेट ऑफ माइंड में रहना ज़रूरी है। इसीलिए क्या फोमो,
So you are very responsible about the lyrics you are writing. Most of the times, yes. कभी कभी मैं कर देता हूँ लाइन क्रॉस वेयर आई एम लाइक बस भाई अब कितनी रिस्पॉन्स मतलब मेरे को भी तो बोलना है जो मानना है हाँ कभी कभी करता हूँ. Do you think that's missing in the DHH scene or just the rap scene in general? Because No idea. I really don't have time to listen to all of what's going on in the DHH scene also. I don't listen to many artists. Very less. I just started listening back to music. हाँ, it's been what 3 years now. मतलब मैंने सिर्फ अपने गाने सुने पिछले 3 साल. ये conscious decision था. In the beginning, yes. Then it became a habit. And that has only helped you grow more. Yeah, it kind of like I don't know yet because मैं दोबारा revisit नहीं किया वो projects. तो मैं एक बारी करूँगा revisit और जानूँगा कि सही में change हुआ है मेरा music उससे या नहीं हुआ. Audience is the better judge because I do it for them. एक बारी release हो गया मैं फिर तो सुनता नहीं हूँ. तो कोशिश वही थी मेरी बीच में ना कि like create something which is mine. It's not influenced the lyrics, music, sonics, nothing is influenced by anyone. मैं सिर्फ जो मेरे को अंदर से आ रहा है मैं वो निकाल के देता हूँ और जो मैंने सीखा है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बताता हूँ मैं. And recently I started listening to music. Like I went back, like I think put on some blues after a while. And I have a nice view from the house. और फिर मैं ऐसे वैली देखते देखते blues सुन रहा हूँ and it just made me feel different. कि थोड़ा बहुत सुन लिया गया भाई दूसरों का इतना. बताओ ना which artists do you listen to? अभी मैं सुन रहा था SRV, this Stevie Ray Vaughan and BB King. तो थोड़ा अभी मैं blues सुन रहा था. Then I went back. अभी तो मैं फिर आज अपनी एल्बम सुनी दोबारा से मेरे को बहुत अच्छा लगा. Plugging in. Thank you. But usually my go-to is blues and jazz. मेरा ये वो उस एरा के अंदर कुछ अलग बात थी, you know, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम थी और एक ही टेक में रिकॉर्ड हो रहा है, एक वार्मथ अलग है, इंस्ट्रूमेंट के साथ इतना ज़्यादा प्यार है. अभी जनरेशन को बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए. म्यूजिक इज लाइक इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट. You can escape everything. You can close your nose, you can close your mouth, you can close your eyes. You can't close your ears. The sound will creep in. Right? It's around you. Be patient. Like वो patience दिखता है मेरे को उस पुराने म्यूजिक में. मेरे को भी एक सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ऐसे मैंने 5 साल लगाया. Just to know inside out of person who made this, who had the first idea of like making this DAW, this software for people like me, kid like me from Tilak Nagar to make music on. What was his thought process? Because it changed a lot of people's life. And I'm sure people, artists like John Coltrane, you know, like BB King, they at once they thought the same thing when they picked up their saxophone or guitar. What was you thinking, bro? क्या सोच रहा था अभी ये इंस्ट्रूमेंट जिसने बताया वो क्या सोच रहा होगा? तो वो पेशेंस, वो प्यार, you know, वो उससे मैं बहुत अभी रेजोनेट कर रहा हूँ वापस से. ठहराओ. Lovely. But rap related आपके कौन inspirations है? Inspirations तो कोई नहीं है. Favorites हैं. Kendrick for sure on top. Snoop, really love his style. वो तो evergreen ऐसा एकदम. I think him as a personality only is just so entertaining. He knew since day one like what he has. Yeah. And he sold it. Still selling it. और वो उसको
I think that's one man like who understand like how to balance career and personal life. बहुत अच्छे से करता है वो. बीवी हैं, बच्चे हैं, हाई रहता है पूरा टाइम. और एंजॉय करता रहता है, कुछ भी करेगा साइड क्वेस्ट. हाँ, उसने जीवन बना रखा है साइड क्वेस्ट पे. सब कुछ चल रहा है साइड क्वेस्ट पे. हाँ. Yeah, so I think Snoop and Kendrick for now. Or I don't know if you know Joy Badass, Pusha T, for sure. These are like broad Earth Gang. Damn. J. Cole is more soul for me. He's like I put J. Cole albums on when I wanna go personal. वो रात वाली albums हैं उसकी. अभी थोड़ा personal introspection. Kendrick is more mind. Like उसके गाने सुन के साथ साथ डिक्शनरी भी लेके बैठनी पड़ती है. क्या बोलना चाहते हैं कभी. हाँ. नाइस. मुझे एक थिंग जो मैंने एक थीम देखी है, नॉट जस्ट इन रैप बट इन म्यूजिक इंडस्ट्री, इज कि अ लॉट ऑफ पीपल गेट फेम वेरी इंस्टेंटली, मतलब ओवरनाइट हो जाता है ना. सो पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल दैट वेरी वेल एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट. आई मीन इट्स वेरी टू मच फॉर पीपल. तो फिर वो जो एक आर्क आता है एक आर्टिस्ट का, जैसे आई फील लाइक एमिनेम के साथ हुआ था, कान्ये के साथ हुआ था. सो लाइक हाउ डू यू फील कि मतलब वो कैसे मैनेज हो सकता है? इज इट सस्टेनेबल या वो हर किसी को जर्नी लेनी पड़ती है कि वो आएगा फेम, यू विल बी ओवरवेल्म्ड एंड तुम्हारा शायद होगा तब थोड़ा मेंटली यू विल बी डिस्टर्ब्ड एंड देन यू विल हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट? I think very करता है. Like people like Eminem and Kanye, like both like very strong headed, like उनकी अपनी आइडियोलॉजी से उनको नहीं हिला सकते. जो वो सोच रहे हैं वैसा ही सोच रहे हैं. फिर दुनिया वालों को कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो. It worked for them, that's why they went. They stayed there. Usually what happens is, in my experience, how I perceive this reality as an artist, when you go up, you have to be well equipped with people around you who understand like that level of, who can like it's not just you who's been hit with the fame. Yeah. It's your whole team, whoever is with you. तो वो well equipped लोग चूज करने बहुत ज़रूरी हैं शुरू से ही. अपने करियर के स्टार्ट से ही ऐसे लोग करो जो प्रेशर के अंदर दबे ना, वो थ्राइव करें प्रेशर में, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रेशर तो देगी पक्का. वही वैसे ही लोग उठाओ जिनको ऐसा हो कि भाई मैं अभी माई बैक इज अगेंस्ट द वॉल, आई वांट टू बाउंस बैक हार्ड. वो सर्वाइव करते हैं यहाँ लॉन्गर रन में. या तो मेरे जैसे करते हैं जिनको पड़ी नहीं है कुछ और अपना करते ही जा रहे हैं. कितने गाने फेल हुए मेरे, जो लोगों को लगते हैं फेल है, बट मेरे लिए तो ऐसा था ब्रो, आई गेव माय 100. मेरे बनते ही खत्म होते ही गाना 100 था. वो मेरे लिए बढ़िया सक्सेस है ये. अभी तुम देखो अभी तुम्हें क्या लग रहा है, यू नो. सो यू कैन प्ले अकॉर्डिंगली हाउ यू वांट टू, बट यूजुअली इट हिट पीपल लाइक व्हेन यू आर, इट हैपेंड विद मी कपल ऑफ टाइम्स नाउ, व्हेन एक एल्बम थोड़ी सी सही परफॉर्म करती है, प्रोजेक्ट सही परफॉर्म कर रहा है, लाइक ओ भाई क्या हाल है, लाइक वी न्यू वी वांट टू डू दिस. Bro, you said this like 3 years ago as well. Come on, relax. I know who you are. So it's first time when it happened, like I felt very weird because artists are very emotional. That's why हम काम कर पा रहे हैं ना. तो मेन तो इमोशनल रहना ज़रूरी है. तो जब बिजनेस वाले वो इमोशन के अंदर आगे खेल लेते हैं इमोशन के साथ, वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है समझना. So I suggest like new artists also, even artists who will blow up and maybe watching this, just like make your own bubble. लोग बोलते हैं ना अपने बबल से बाहर निकलो. आर्टिस्ट को अपना बबल बनाना बहुत ज़रूरी है. Be in your bubble. Make that bubble very beautiful. Create in that bubble. Don't let anyone enter. Keep that bubble very pure. उसके बाहर जो मर्जी करवाओ, उसके अंदर मत आने दो. Don't let it affect you.
तो अच्छा बन गया. Like I've seen people supporting someone who's on top, great, like artist, and then this artist knows someone who's an evil person, or like किसी उसकी इंटेंशन सही नहीं है. ये आर्टिस्ट जानता है, वो बता रहा है इसको, बिजनेस वाला भी बोल रहा है भाई आई सपोर्ट यू, आई विद दिस शिट, गुड. एज सून एज he starts to, like the top one starts to come down, they move back to the evil motherfuckers because that's where the money is. Now जो अभी नीचे है उसका तो इधर उधर हो जाएगा सारा कि भाई तू तो मेरे को दोस्त बोल के गया था, अभी ये क्या वक्त दिया है. वो जो टाइम स्पेन है वो अपना मेंटल, शुरुआत से कोई क्या बोल रहा है तुम्हारे साथ, क्या भाई बन रहा है, बनो, हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो. Come back into the studio, create with a pure heart. Don't take that also into the studio as well. मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं ऐसे कि लोगों का लेके चला गया. Then you're creating from that thought process. So the next one you thinking that is gonna blow up. जैसा वो होता है ना, एक ओवरनाइट एक गाने ने ऊपर पहुंचाया कि अगला भी ऐसे ही पहुंच जाएगा. कैसे पहुंच जाएगा? Like now you're not speaking from your thought process. Somebody else came in and influenced your state of mind. The one that made you reach there, that was yours. You know? And वो tricky होता है बहुत. Yeah. Like fame hits you each artist, it hits them very differently because most of hip hop artists, we come from nothing. Like hip hop का in general यही रहता है. Most of the artists I know, even the ones I don't fuck with, I connect with them to a level where I know where you're coming from, and I'm really happy for you got all of this because I know the struggles behind. तो वो प्रोटेक्ट करके चलना बहुत ज़रूरी है. Like हम ये सांपों की इंडस्ट्री में. But is it necessary that you come from nothing to be able to have something of substance to talk about? No. No. You just have to be human enough. I'm comfortable now. I still have shit to say. Yeah. Like I can connect with younger ones on a human level. कि हाँ मतलब क्या किस चीज़ से जा रहा है breakup? I've been through it. What's up? Yeah. Like you haven't found the right one yet. So chill. Yeah. Don't dwell on it too much. So I can talk to them on a different situations. You know what I'm saying? So it does not have, जरूरी नहीं है पैसा होना हो. You go through emotions. पैसे का उससे कोई मतलब नहीं. You go through grief. Everyone goes through grief. Everyone goes through sadness, anger. पैसे का उससे कोई लेना देना. Underlying emotions तो सबके हैं. Just stay open to the experience. Yeah. And stay open in the studio. Stop thinking about ये पसंद आएगा कि नहीं, ये चल रहा है अभी. That formulas, let it, वो formulas Excel sheet में ही रहने दो. मत लाओ यहाँ पे, हमारी ग्रेड में वो काम नहीं करता. हाँ. There's this very beautiful quote which I will paraphrase कि they crucify you if you change, they crucify you if you don't. Do you ever find yourself trying to sound like Prabdeep? No. I don't even know what Prabdeep sounds But like. audience के दिमाग में होता है ना कि this is what Prabdeep sounds like. Never been in that lane. Never been in that thought ever in my life. And I don't want to. This interview is going to be legendary because when I'll make it, people are going to look back and be like, damn, he knew. Of course, I knew it since 4th grade. I don't really care what you think of me. At this point, तो मेरे को परवाह ही नहीं है कौन क्या सोच रहा है. मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ. मैं जानता हूँ मेरा स्टैचर कहाँ है एज एन आर्टिस्ट और मुझे कहाँ जाना है.
So it's gonna keep evolving. So I dropped Classic, debut album, then I dropped King. Two very different sounding projects. Then Tabia happened. Very different. Then King returns. Very Abram Deluxe. Then Brahm. Like all my projects are sounding very different because I don't know who Prabdeep is. Like Do you want to? as an artist, no. I'm just gonna keep exploring, see where it. So with DSP, I came back to like it's a mix of different projects. लोगों को अभी तक full form भी नहीं पता है उसका. हाँ. जो I was मैं hoping. अच्छा नहीं बताओगे. नहीं बताऊंगा. They have to figure it out. What it is. But it's like I picked up different kind of songs from Prabdeep's discography, basically. And also I separated myself from Prabdeep. Prabdeep is a brand, Yeah. like any other brand. I'm working for that brand. So I'm like, what can I do? I've been working for this name for a while now. अभी क्या मैं और निकाल सकता हूँ जो जिसमें मुझे भी मज़ा आए और सामने वाले को भी. मैं सारे ऐसे एक्सपीरियंस पुराने नए मिक्स करके वो डाले. फॉर अ वाइल इट वर्कड, यू नो, कि ये सही है. द नेक्स्ट वन दैट वी आर वर्किंग ऑन इज टोटली डिफरेंट. Very different. Like nobody is expecting that from me, and I think that is Prabdeep. Unpredictable. Every drop is like Different. yeah, it's you are not expecting it. Lovely. But so, like, when does an album or a song end for you? When you have hit master, or the audience reception to it is also something that you take into account? मतलब वो भी process का part है क्या? I think for a week. Like वो जब स्टार्टिंग में रिलीज के बाद मैं थोड़ा चेक करता हूँ कितने नंबर्स है, लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे मजे लेने के लिए. थोड़ा डोपामिन हिट चाहिए रहता है मेरे को भी, कितना जितना भी टाइम काम किया उसके बाद चलो एक हफ्ता निकाल लिया. बट आफ्टर अ वीक लाइक आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और मैं तो नहीं वापस रिविजिट करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बिकॉज ऑलरेडी इतना सुन लिया होता है गाना. प्रोजेक्ट करते करते ही पहले लिखते हुए सुनो, फिर रिकॉर्ड करके सुनो, फिर मिक्सिंग. So it's like different kind of processes the song or album has to go through. But yeah, for a week like I indulge in the outside world, like what people think, and not take it with me कि अच्छा ये पसंद आया था तो अगली बार वो करना, ये भी नहीं लेके जाता मैं. हाँ बढ़िया, तुम्हें अच्छा लगा था, नाइस, दिस इज अ मोमेंट, एंजॉय इट. Yeah. तो मेरे से कोई पूछता है चिट्टा जैसा गाना बनाओ, तो चिट्टा सुन ले जाके. क्यों मेरे से दोबारा वो बनवाना चाहता है, you know? I would love to know your opinion on someone like Kanye, because I feel like वो ऐसे affirmation track types गाने बनाता है, right? और आपका भी मैंने देखा है. I feel like Gyani to me is that, कि affirmation track जैसे मैं सुनती हूँ. So like what is your opinion on him, and how do you also feel as a fan कि जैसे हम देख रहे हैं he's having a very public breakdown. So when he's done, when he's gone from this world, people are going to be like, we loved him. Right? And I'm going to say it now. I loved him through his ups and downs. I loved him when people said like, we hate this man for what he's doing. I still loved him. Because I see like what kind of graph he is going through. It's not easy to have been public eye. We almost like forget that artists are humans. yeah. We see them as gods. We see superstars as gods. You can't do anything, you can't say anything bad. We'll strip you down from your throne. Well, my middle fingers are up and I'm gonna say bad shit to everyone. You can't do shit to me. That's what Kanye does, right? Yeah. Like I'm gonna speak my mind, I'm gonna speak the truth, I'm gonna speak what I know, and you can't do shit. And I love him for that. Yeah. Like you
that's very human. Like when people come out like this trend that's going on, oh, have you seen this tweet this artist did like 15 years ago? Mother, have you seen your tweet what you were doing 15 years ago? Yeah. You know, you've been, मतलब ये लोग तो और क्रिंज हैं जो बोल रहे हैं ऐसे. तुम कैसे उंगली उठा सकते हो? तुम तो अभी भी आप कर रहे हो जिंदगी में, दूसरे पे तो कैसे ही उठा रहे हो तुम. सो वो मेरे को कभी समझ नहीं आता ये ऑल दिस कैंसिल कल्चर एंड ऑल. लाइक इट्स साउंड्स वेरी लाइक प्रिविलेज्ड, यू नो, entertainment. This is privileged entertainment to me. Yeah. People who have work like you all, when you have to figure out these lights and like when you don't have enough time to comment on other people's mistake, because you are making mistake in your process as well, and you understand mistakes are inevitable. That's how you grow. So stop like be a little more empathetic towards artists. Yeah, that liberty to make mistakes, which is a very normal human process, on the internet has become such a big crime now. कि पकड़ लेके अभी. हाँ, फुल पकड़ लेते हैं. मैं तो घंटा मेरे भी निकालते रहते थे, ये देख तू पहले ऐसे होता था तो क्या हो गया. अब भाई मैं अपनी माँ के पेट से सीख के थोड़ी आया हूँ कि भाई अच्छा इंसान बन के ही पैदा हुआ है. आई बिन थ्रू द स्ट्रीट शिट्स. लाइक मतलब मैं भी लड़ाइयों से गया हूँ. लाइक आई हैव माई ओन फियर्स एज वेल, दैट आई एम स्टिल ओवरकमिंग दोज फियर्स. यू नो, लाइक आई स्टिल फील एंग्शियस समटाइम्स अलोन, लाइक व्हेन देयर इज. तो वही होता है कि लाइक आर्टिस्ट अपने आप को खुद ही इतना जज कर लेता है. मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने आप को इतना जज किया है पिछले कुछ सालों में कि लोगों को ये समझ में आएगा तो तेरे को कैसा देखेंगे, क्या होगा, तू फुद्दू है. मैं अपने आप को इतना जज कर लिया, तो बाहर वाले करते मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बस इतना ही कर सकता तू. यू नो. Yeah. So I think like be a little more lenient towards artist, because हमारी लाइफ सही में अनप्रिडिक्टेबल होती है. हमारे पास ना सिक्योरिटी होती है कि डूब गया. मैंने तो अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, ना पढ़ाई करी, जॉब जहाँ करता था उसको गाली दे के आया ताकि दोबारा ना जा पाऊँ. इंडस्ट्री में तो कोई मेरे को काम घंटा नहीं देने वाला, ये तो मेरे को पक्का पता है. जहाँ मैंने म्यूज़िक बनाना बंद किया, अच्छा म्यूज़िक बनाना बंद किया, वहाँ तो मैं डूब गया. ऐसा है. मेरे को भी पता है मैं तब तक चल रहा हूँ जब तक मैं सही काम कर रहा हूँ, जो मैं करता रहूँगा मरते दम तक. ये तो म्यूज़िक के लिए, सिर्फ म्यूज़िक के लिए मैं बोल सकता हूँ. इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग मैं क्या गलतियाँ करूँगा वो मेरे को नहीं पता. बट अगेन लाइक बी लिटिल मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स आर्टिस्ट. वी हैव आवर ओन बैटल्स दैट people don't see, and most of artists who make music, who जो लोगों को लगता है ये हार्ड है, ये क्या बोल रहा है, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था. You don't know what kind of pressure that artist been through. मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं अभी लेट्स से मेरे को कोई पसंद, बहुत लोग नहीं है मेरे को पसंद इंडस्ट्री में, मैं किसी एक को गाली दे दूँ, पहले तो बहुत फेमस हो जाएगा आपका इंटरव्यू, है ना. नाम लेके गाली दे दी तो मतलब नेगेटिविटी पे तो झपट जाते हैं लोग, गाने छोड़ देते हैं पीछे. गाना भाई एल्बम आई थी, अबे एल्बम छोड़, इंटरव्यू देख, गाली दे रहा है. बट यू नो आई फाइंड दिस लाइक ये पैरासोशल रिलेशनशिप्स है ना, ये फैंस के विद आर्टिस्ट, वो उस पर वो ह्यूमनाइजिंग एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है. दे लुक एट, दे हैव दिस फिक्स्ड आइडिया ऑफ हु द आर्टिस्ट इज एंड दे क्लिंग टू दैट. तो कोई कुछ और करना चाहे तो वो दे कांट टॉलरेट दैट ओनली. एंड दैट आई फील लाइक इज स्पेशली प्रेवलेंट इन द रैप सीन कि ये फैंस का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते जा रहा है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार you again, like I see them, they're very young. Hip hop in general in India is very young, so the crowd is also very young. Acceptance youth से आती है किसी भी कल्चर की. तो अभी एक्सेप्टेंस यूथ ने एक्सेप्ट किया है हिप हॉप. मेन ऑडियंस इज 18 to 24. दे आर ग्रोइंग. आप क्या कर रहे थे 18 से 24 में? मैं कॉलेज में थी. तो आप तो मचाया होगा. हाँ जी. हम सब ने मचाया है. वो भी वही कर रहे हैं. फर्क ये है कि अभी सोशल मीडिया पे दिखता है. हाँ, ऐसे रिकॉर्ड बन जाता है तुम्हारा. अभी वो बड़े हो रहे हैं, बड़े होंगे, जब वो बड़े होंगे आर्टिस्ट भी उसी को कैटर कर रहे हैं जस्ट टू स्टे इन द गेम. वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, म्यूज़िक भी मैच्योर हो जाएगा.
धीरे धीरे वो अभी मिसिंग है. लाइक आई व्हेन वी डू शोज, हमारे शो पे, मेरे शो पे तो चलो बच्चे कम आते हैं बिकॉज मैंने टिकट पॉइंट ही प्राइसिंग ही हाई कर दिया है कि बच्चे आ ही ना पाए. क्या करोगे मेरे शो पे आके? अरे बहुत आर्टिस्ट है यार जिनके शोज पे जाके तुम पढ़ सकते हो, एनर्जी But रिलीज you कर are सकते a हो. good influence. आह, I mean, from my personal perspective at least. नो यू आर राइट एक्चुअली. तो अब अलाउड है वो. यू आर राइट. I'll think on this more. Okay. I'll think on this more. But anyway, मेरे शोज पे आते हैं बच्चे, वो पैसे इकट्ठे करके आते हैं. देखता हूँ मैं कि आगे ही खड़े हैं पूरा टाइम, वो कहीं नहीं गया, पानी भी नहीं पी रहा है भाई, मैं पकड़ा रहा हूँ पानी, भाई मर जाएगा पी ले. वो एक अलग फीलिंग है ऐसे ना कि मेरे को पता है इस बच्चे ने कैसे इकट्ठे करे हैं पैसे. I was that kid once. 10 रुपये दिन के मिल रहे हैं, वो इकट्ठे करके ऐसे 150 रुपये की सीडी खरीदी, फिर उसको फुल वॉल्यूम पे बजाया. हाँ. कि भाई जब तक ये सीडी चल रही है तब तक तो ये बजेगी. सो आई अंडरस्टैंड दैट कनेक्शन दे हैव. एंड few of those young ones I see, like I give them that love every time they come up. Then I have older ones in the back who are supporting my vision at this point. Yeah. क्योंकि मेरा म्यूजिक नहीं बच्चे एंजॉय कर सकते इतना. That is the reason why numbers are not there with. It's not like I'm not making quality music. Again, like that is the only thing I'm very sure about. My music is great. See it from any angle. From quality, from lyrics. I wanna influence kids. These kids, do they wanna get influenced? हो ना चाहे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा. बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ काफ़ी, जितना मेरे से बन पा रहा है कि मैं बाहर डालूँ ऐसा, इस किस वे में क्या चीज़ बोलनी है मेरे को आर्टिस्टिकली, कि मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है लिखने में और सामने वाले को भी, किसी बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है. जैसे आप यही लाइन ज्ञानी की, मेरे तखत ते बैजा कोई नहीं, मैं सिर च नहीं बैन देना. राइट, लाइक दिस it will, the meaning will change every 5 years in your life. Yeah. Of this thing. तो बच्चों की लाइफ में भी ऐसा ही अब होगा. वो पीछे जाके दोबारा सुनेंगे जिन्होंने एक बार ही सुनी होगी पहले कभी और वह बकवास क्या बोल रहा है, इतना स्लो म्यूजिक, मज़ा ही नहीं आ रहा. Yeah. वो सुनेंगे अभी आगे जाके जब वो जॉब करने लगेंगे और वो असली दुनिया में उतरेंगे, फिर उनका पीस छीना जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं पैसे ले ले, पीस दे दे. तब वो सुनेंगे वो ये बोल रहा था. सबका अपना अपना टाइम है. अगेन लाइक टू योर क्वेश्चन, मैं बहुत घुमा दिया बात को. आपका आंसर यही था कि बच्चे बड़े होंगे और आई डोंट सी देम एज टॉक्सिक, दे आर जस्ट बीइंग यंग. They're just young, yeah. So there are a lot of people in the house who are very big fans of चित्ता म्यूजिक वीडियो. सो मुझे पूछना था आपके कौन से ऐसे म्यूजिक वीडियोस है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक मतलब योर्स एज वेल एज लाइक अदर पीपल्स. अच्छा, दूसरों के भी बताने पड़ेंगे? नहीं, आपसे स्टार्ट करो फिर मन किया तो. आई थिंक चिट्टा फॉर श्योर. चिट्टा में तो अभी भी मैं देखता हूँ तो कुछ ना कुछ नया मिलता है मुझे. टिल आई फाइंड समथिंग न्यू एवरी टाइम. पापी आई रियली लाइक बिकॉज आई लव लद्दाख. डिड यू डायरेक्ट दैट वन? नो, दिस गाय मिकेल, he directed that one. उसके अलावा ज्ञानी I really like. वो एक हफ्ते के, that process was also very beautiful. I made like a lot of connection with different creative people back then. और बाकी दूसरों के उसमें जाएं तो I'm more into like films and movies, you know. Go ahead. Music videos इतना नहीं. अभी मैं सेक्स एंड द सिटी देख रहा हूँ, which I really like. मतलब मेरे को मूवी और द शो. अच्छा, पुराने वाला. हाँ. Which character do you relate to? I knew that was coming. I really like Samantha.
Everyone loves Samantha. Yeah. Not everyone. People, Yeah. like girls around I me, feel like they पहले people didn't like her so much, but अब when people are noticing like from a fresh perspective देख रहे हैं. हाँ, because she's the least problematic. मतलब Yeah, मेरे को yeah. ऐसा लगता है. Yeah. उसमें वो जो जैसा भी कर रही है वो एटलीस्ट अपना बर्डन दूसरे पे नहीं थोप रही. कुछ भी करती रहे वो उसमें और दूसरे को बता भी नहीं रही कि तू यही कर. एंड शी इज ऑलवेज देयर. तो समंथा बहुत सही है आई थिंक. This is so unexpected, but I love it. Yeah, I like these kind of integrate. And then I was watching Desperate Housewives also. I love that. Again, who is your favorite character? Desperate Housewives. मतलब मैंने तो शॉर्ट्स के थ्रू ही देखा है वो हाँ. मोर और लेस. तो मेरे को बस आई थिंक गैबी है उसका नाम, वो पता है. गैबी बहुत सही है. हाँ. उसके में कैरेक्टर के मेरे यार अगेन छोटा दिमाग है, कम क्षमता है, तो मैं नाम भूल जाता हूँ. बट आई रियली लाइक द स्टोरी लाइन, लाइक हाउ इंटीग्रेटेड इज, लाइक इट जस्ट ग्रैब्स यू. बस डेस्परेट हाउसवाइफ्स का मेरे को यही लगा कि उसमें ना कुछ सही नहीं होता कभी. लाइक इट जस्ट लाइक गेट्स इंटेंस एंड इंटेंस. मतलब ऐसा सीजन में 2 बार कभी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे चलो कुछ सही हो रहा है, बाकी सब इंटेंस ही चल रहा है. सारे डिसीजंस दबी लिए जा रहे हैं हर तरफ से. बट देन आई मूव टू सेक्स इन द सिटी. आई लाइक दिस. मेरे को एक सीरीज चाहिए था. इससे पहले मैंने मंक देखा था. इट्स अ डिटेक्टिव शो बट वेरी डिफरेंट ट्विस्ट. उसमें आई डोंट नो इफ यू हैव सीन मिस मार्वेलस. Yeah, I have. I think we have the exact same almost. तो उसमें जो उसका डैड होता है, Oh, I love that character. हाँ, वो ही इज प्लेइंग प्रोटैगनिस्ट इन मंक, which I really liked. वो भी खत्म हुआ मेरा. Then I moved to Desperate Housewives, then Sex and the City. तो मैं एक सीरीज ऐसे पकड़ के चलता हूँ जो मेरे बैकग्राउंड में रहता है. So I watch very less music videos in that sense, you know. मैं सीरीज और मूवीज देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. But what about like hip hop related movies? जैसे आपको गली बॉय कैसी लगती है? सही है गली बॉय. हाँ, उस टाइम के लिए सही है. गली बॉय हैड गेव प्रोज एंड कॉन्स टू द सीन. प्रोज ही बताऊंगा, कॉन्स में कौन ही होता हूँ बताने वाला. प्रोज की उसने बहुत रिकग्नाइजेशन दी सीन में. सबका ग्राफ ऊपर गया इंक्लूडिंग मी. हम मेरे सामने मेरे गली में बना है. आई वॉज इन द रूम. I was there when the beat was happening. I was there when they were recording the verses. I was there when it got picked up by Sony. और वो hook मेरे गली में गली में, you know. So like I've seen the whole thing like happening in front of my eyes. I'm like, damn, like this is history right here. Gully Boy is one, and now I don't know if you know, like there is another series coming. I'm acting in it. Yeah. Yeah. That's another hip hop centric. अभी बनेंगी और आगे जाके. और 8 Miles तो of course that's their classic. उसके अलावा there was this another show Netflix से हटा दिया उन्होंने, Defiant Ones. ये डॉक्टर ड्रे और जिमी आइवीन का वो था, डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी. वो बहुत सही था. एंड कान्ये का वो जीनियस, दैट वाज आल्सो अमेजिंग. हिप हॉप के लिए तो मेरा है ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर. ऐसा कुछ कम चीज़ें बनती हैं हिप हॉप को लेके ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट में. ओल्ड में देखा जाए तो जो हिप हॉप से ऐसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, दैट वाज विल स्मिथ्स हाउ कैन आई फॉरगेट, फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर. थैंक्स ब्रो. बहुत देखा है मैंने वो. आपने ऑल आइज ऑन मी देखी है? Yes, of course. Of course. Yeah. Yeah. Yeah, I mean like hip hop, there's still way to go. Do you ever see yourself directing anything? Yeah. उस zone में? Yeah. Like a movie, you're saying. Yeah. In maybe in a decade or so. Like I've been directing music videos. अभी भी मैं like I don't see myself as, I'm not even good. क्योंकि जिनका काम मैं देखता हूँ,
I am again like inspired by movies and like plots and you know like how integrate like how you're getting hooked. अगर मैं एक सीरीज देखते हुए महीनों के लिए हुक हो रहा हूँ like I think I can get somebody hooked for 5 minutes. वो भी मैं अभी नहीं पहुँच पाया हूँ. ज्ञानी was my first directorial. Oh, okay. And I will direct once I think like I'm there, you know, I can tell a story. अपनी तो नहीं बताऊंगा कभी भी. I'll fail at it. Well, you've already narrated that through your music in many ways, right? Oh yeah, म्यूजिक में तो मैं डायरेक्टर हूँ. हाँ. हाँ म्यूजिक में तो हूँ क्योंकि वो मेरा एरिया है ना. लाइक आई कैन एक्सपेरिमेंट इन इट. लाइक आई कैन मेक साउंड्स के टू बैक व्हाट आई एम सेइंग, यू नो. वो बना लेता हूँ मैं अच्छे से. डायरेक्शन इज अ होल डिफरेंट गेम. और मैं किसी और का जॉब नहीं, मतलब वो होता है ना कि किसी और को दे सकता था मैं. कोई और डायरेक्टर को जॉब मिलती, वो अपना आईडी लेके आता, अपनी टीम आती, सबको पैसे मिलते. मैंने खा लिया किसी और का स्पॉट. वो मैं अवॉइड करता हूँ जितना हो सकता है. But you know, I really respect artists who do multiple things and just have fun in general. Daniel Glover मेरा बहुत ज़्यादा favorite है उस sense में. Donald Glover, sorry. So and I see the same energy in the stuff that you do also. Ma'am, no, I am not even 50% there. Like I don't think I'm even 10% there where he is. Childish Gambino is one amazing human being. उसका एक community करके Yeah. वो है सीरीज है. वो लाइक क्या एक्टिंग करी है उसने इसमें भी. आपने अटलांटा देखा है? ऑफ कोर्स या अटलांटा भी बहुत है. उसमें मैनेजर का रोल कर रहा था ना वो. इमेजिन लाइक एज एन आर्टिस्ट ही वाज बीइंग अ मैनेजर इन द सीरीज. सो या आई थिंक ही इज I'm really fascinated. Even like Kanye to some extent. His vision for designing. What like work Virgil Abloh and him did like back in the days, like Graduation and all these cover when he was Virgil was Kanye's creative director. वो टाइम भी बहुत सही था. like I still inspires me, you know, कि कैसे दो creatives मिलके करते हैं काम. बट चाइल्डिश तो यार एक अलग ही इंसान है वो. ही इज नॉट चाइल्डिश एट ऑल. इज वेरी मैच्योर. हर जोन में किसी भी कैमिलियन है वो एक्चुअली. लाइक आई कांट इवन डू इट कॉन्शियसली इफ आई वांट टू. लाइक आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर इयर्स. आई एम नॉट सेइंग कि उसको करना नहीं पड़ा होगा, बट लाइक ही डज इट सो वेल. Like when he's acting in a thing, he's an actor. Like when he's doing a music video, he's a dancer. Also, you know, like डायरेक्ट कर रहा है तो एकदम डायरेक्टर. लाइक राइटर गाने तो चलो क्या ही बोले. So we take a lot of recommendations on this channel, and one interesting thing I wanted recommendations from you on are live concerts. आपने ऐसे कौन से अटेंड किए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया? अटेंड तो अभी तक मैंने कोई नहीं किया ऐसा जो मेरे को लगा होगी वाह. ट्रैविस को देखने गया था मैं दुबई. हाँ आया नहीं वो. मैं मिलूंगा जिस दिन उससे, मैं उसे बिठाऊंगा पहले, बैठ इधर. मैं तेरे को एक हफ्ता बताना चाहता हूँ मेरी लाइफ का. मैं पैसे इकट्ठे करके आया था ब्रो. मेरा बहुत नुकसान हुआ था उस हफ्ते में. शो था मेरा दुबई में. एनीवे लाइक वो था. बाकी आई हैवंट सीन एनीथिंग इन इंडिया. लाइक आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस रहमान्स शो, एंड आई गॉट टू नो लाइक बेनी दयाल is also involved in like his production side. उनके साइड से. So I'm artist doing artists production. Like I'm very interested to see. But I haven't experienced in my fraternity. I haven't experienced something which blew my mind. Online जो मैंने देखे हैं, I think Kendrick का ही था. अभी इस पे आया था Amazon Prime पे. Yeah, I was just showing it to Yeah. I see dead people जब Dr. Dre That's a different one. Like that's a pop-out show. जो रेड वाला जो स्टेज है पूरी Amazon Music वाला. हाँ एक तो वो है. एक इससे पहले वाला था मिस्टर मोरार एंड बिग स्टेपर का शो था वो. That was very nice. Like they like मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन उससे देखता हूँ कि प्रोडक्शन में क्रिएटिवली इन्होंने क्या किया हुआ है. So there was a ramp that he was walking on and the ramp was mic'd. So he's stepping. So he's a big stepper, right? Yeah. So he's stepping top, 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 top. Beat पे आ रहा है and like it's और उस पर रिवर्ब डाल के उन्होंने गूंज रहा है वो स्टेडियम के अंदर.
That just like कि every step he's taking like it's there, like he's roaring. तो वो सारी चीज़ें मेरे को ऐसे बहुत fascinate करती हैं कि कैसे सोचा तूने. Plus they have resources too. यहाँ तो बोलो भाई lights लगा दे, कह रहे अरे भैया ये टी बनाओ, लकड़ी लगाओ, टांग दो, चल जाएगा. Show cancel sir, मैं घर जाके सो रहा हूँ. Travis Scott also cancelled on the Coachella finale, right? Like Vinayak. Travis Scott ही था ना जो cancel किया था फिर. No, that was Frank Ocean. Oh sorry, that was Frank Ocean. Frank Ocean अलग ही breed है भाई. वो एक अलग ही बंदा है. These kind of fearless artists like is not happening in India right now. Hip hop तो हमारा आया ही rebelliousness से है ना. आप कितना झुकेंगे भाई इंडस्ट्री के आगे. Let's like stand up and like make our own right now. टैलेंट की कमी नहीं है इस देश में, दबाया बहुत जाता है कि ऐसा बना लो बन जाओगे. तू कौन होता है? तू तो आता भी नहीं स्टूडियो, तेरे को तो पता भी नहीं है कैसे बनता है म्यूजिक. तू कैसे बता रहा है? जस्ट बिकॉज यू स्टडीड समथिंग. ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मंक जैसा ही बनाओ या सेक्स एंड द सिटी जैसा ही बनाओ क्योंकि मेरे को वो पसंद है. बट इट डज नॉट मीन लाइक ऑडियंस को तो वो पता है ना जो ऑलरेडी आया हुआ है. I'm not this is not the original code like somebody. Rick Rubin said it. And Rick Rubin also wasn't the first one to say it. Yeah. Have you read the Creative Act? The Rick Rubin. I read half because start में ही उसने लिखा हुआ था उसमें कि if you get what you're looking for, just stop. Wow. And I stopped. I got what I was looking for. My partner, she read like the whole thing and she came out of the room like buzzing with the energy. And I was also buzzing like मैं अपने जोन में कुछ अलग करके बज रहा था and like wow, this is amazing. तो वो बुक है भाई. People who say Rick Rubin कुछ करता नहीं है. नहीं, मेरे को हंसी आती है. चिंटू तेरी बात से किसी को रिक रूबिन को फर्क नहीं पड़ रहा. वो शंग्रीला में बैठ के चिल मार रहा है. Highest level of artists like going in that room, in that estate, making shit that is defining generations. Like वो generation के लिए genre define कर रहा है. How can you say कि कुछ नहीं करना आता इसको? शंग्रीला एक्वायर करना ही एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में. People who don't know what Shangri-La is, like just look for it, what it is, like what it stands for. That whole estate. उधर क्या क्या क्रिएट हुआ है. As a creative, I feel like मेरा बड़ा मन करता है गाली देने का लोगों को as a creative. So, like, what are some things you would like to give your recommendations on? फिर मैं इसमें पूछ सकती हूँ. किस चीज? कोई भी आपको जिस पे भी. जैसे मतलब बहुत ज़्यादा म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, बट मूवीज वगैरह, डॉक्यूमेंट्रीज. I'll ask one. Okay. A product for less than 10,000 rupees. Interesting. हाँ, इसमें तो फंक्शन भी होना चाहिए. I'll say मेरे उसमें तो I think किचन अप्लायंस में आएगा एक. ये मैंने एक अभी वो खरीदा था मल्टीपर्पस. हमारे घर पे सिलेंडर नहीं था, हमने मूव किया था तो काफ़ी. एयर फ्रायर ले लो यार, छोड़ो. बेस्ट इन्वेस्टमेंट. हाँ, एयर फ्रायर ले लो, सोचो ही मत आगे, और मस्त बनाओ उसमें मुर्गी की टांग. जिंदगी बढ़िया हो जाएगी. Nice. और आपके फेवरेट पेयर ऑफ हेडफोन्स कौन सी कंपनी के हैं? लाइक इफ यू हैव टू गिव हेडफोन रिकमेंडेशन. हेडफोन्स लाइक ओवर या कुछ over the भी year, ओवर द ईयर आई से बेयर डायनामिक. मैं स्टूडियो वाला इंसान हूँ थोड़ा, तो मेरे को थोड़ा ऐसा चलता है कि एलिवेटेड साउंड थोड़ी सी, और कलर्ड है वो थोड़े से. लाइक मेरे को फ्लैट पसंद है कि मेरे को जैसे आर्टिस्ट ने क्रिएट किया वैसा सुनना है. मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाना उससे. तो मेरे लिए वो 990 इज़ द बेस्ट वन, बट इट्स ऑन अ वेरी लिटिल एक्सपेंसिव रेंज. थोड़ा से 26,000 27,000 के हैं. हाँ, बाकी आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद एयरपॉड प्रोज. बढ़िया लगता है मेरे को. वो कलर्ड है बट लाइक इट गेट्स द वर्क डन. कि मैंने तो इतनी बेस डाली नहीं थी. इसमें तो बहुत आ रही है, मज़ा आ रहा है इसमें सुन के. Nice. So, what is a work of yours that you wish more people recognized?
Sthir, this song Sthir. If Sthir becomes mainstream in India, this track Sthir, it will change our society. I believe in that. फिर मेरे को भी फिर मैं वही करूँगा जो मुझे करना है. फिर मैं 1% भी नहीं सोचूंगा कि कैसे आएगी अगले महीने की EMI. You know, वो that's one thing. So, how has the idea of creative fulfillment for you changed from when you started back then to now? It came full circle. हाँ मतलब जिस इनिशियल थॉट से मैंने चालू किया था मैं वापस उसी पे आ गया हूँ. Like that freedom I felt for the first time creating. Freedom from the pressure of society, freedom from my relationship in my home with like very close ones. Like it just liberated me back then. When I first time wrote and like recorded, my whole crew was laughing in the back. मैंने रिकॉर्डिंग खत्म करी और मैंने सुना रिकॉर्डिंग में आ रहा है, हंस रहे हैं वो पीछे. क्या कर रहा है ये. बट आई फेल्ट वेरी फ्री कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार. एंड फिर वो लेटर ऑन लाइक इट बिकेम थेरेपी. देन आई वेंट इनटू दिस होल रैबिट होल ऑफ गेटिंग नंबर्स. गॉट द नंबर्स, डिडंट फील इट द वे आई सपोज आई थॉट इट वुड मेक मी फील. अब मैं वापस आ गया हूँ लाइक इन दैट फ्रीडम जोन और आई एम फीलिंग लाइक वेरी फ्री. एंड आई अंडरस्टूड लाइक इवन इफ आई से समथिंग इन द स्टूडियो डज नॉट मीन इट एज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि बाहर जाए. मैं बोल के यहाँ भी रख सकता हूँ. सो आई कैन से व्हाटएवर द वांट टू से एंड पीपल हैव नो आइडिया अबाउट इट, सो दे कांट जज मी एंड आई विल हैव मनी टू पे नेक्स्ट मंथ's EMI. Okay, this final question I'm keeping common for all the guests who are going to appear on this season. कि if we were to make a playlist for aliens, तो उसमें आप 3 कौन से गाने डालोगे जो वो सुन सके, and that'll be sort of like an introduction for humans. For humans, Yeah. हाँ. मैं डालूंगा एक टाइनी टॉर्चर करके है गाना फ्लाइंग लोटस का. वो डालूंगा. सुनना आप घर जाके, आपको बहुत मजा आएगा. समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ. फिर मैं डालूंगा पिंक फ्लॉयड का शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड. कि थोड़ा अब आपने टॉर्चर ले लिया, अब आप ये सुनो. फिर मैं डालूंगा एक अमोंटोबिन करके आर्टिस्ट है, अमोंटोबिन, उसका स्टोनी स्ट्रीट. ये 3 गाने मेरे होंगे जो जाएंगे. मेरा कोई नहीं, जाना भी नहीं चाहिए. Lovely. यहाँ लोगों का दिमाग खराब हो रहा है. एलियंस. So, when we called your team कि क्या कॉफ़ी पीना चाहोगे, आपने बोला ब्लू टोकाई की चाहिए. So, we were so like happy कि coincidentally it happened that our brewing partners are Blue Tokai and we have a lovely gift for you. There you go. Damn, that's nice. मेरा फेवरेट है. Yeah. मिक्स टेप और एल्बम का पूछ रहे थे आप, क्या डिफरेंस होता है. सो एल्बम्स आर मोस्टली हैव लाइक वन सॉर्ट ऑफ, इवन इफ इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट बट लाइक इट्स, जैसे ड्रम्स हो गए, बेस हो गए, लाइक देयर एलिमेंट्स इन दैट आर गोइंग थ्रू आउट द एल्बम. उनके लेवल्स सोनिकली, मिक्स और मास्टर, लाइक ये सारी टेक्निकल चीजें होती हैं. प्लस लाइक देयर इज अ अंडरलाइन थीम गोइंग ऑन. Okay, yeah. यू नो, जैसे अब अगेन लाइक इट्स अ, मैं सीरीज के उसमें बताता हूँ कैसे अलग होगा. हैव यू सीन लव डेथ एंड रोबोट? No way he has. वो मिक्स टेप है. तो वो कहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी एपिसोड का अच्छा, okay, that किसी makes चीज sense. के हाँ, साथ. हाँ, जैसे ब्लैक मिरर ऑल्सो, जी, हाँ. दैट्स अ मिक्स टेप. कि ये रैंडम कहीं से उठा के कुछ, बट क्रिएटर एक ही है, तो वो ऐसा कंपाइल करके दैट्स अ मिक्स टेप. एल्बम इज वेयर लाइक इट्स वन, लाइक यू टॉप टू बॉटम एक साउंड. यू नो व्हेन
Good Kid, Mad City, या To Pimp a Butterfly, like I'm again referencing Kendrick's albums. सब एल्बम्स का डिस्टिंक्टिव साउंड है अपना, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ साउंड के साथ, तो मेरे को पकड़ में आ जाता है कौन सा गाना किस एल्बम से फटाफट, जस्ट बाय द स्टार्ट लाइक 10 seconds ऑफ इट. सो दैट्स द डिफरेंस ओवरऑल मिक्सटेप एंड एल्बम. So if you could just look into the camera and tell whoever your listeners are watching this कि subscribe कर दो चलचित्र टॉक्स को. भाई कर दो सब्सक्राइब. आई डोंट डू दिस, मैं बिना पैसों के नहीं करता है. इन्होंने कॉफ़ी बिल आगे मेरे को करवाया है, तो कर दो. देखो तुम, दिल से आ रहा है, बिकॉज दीज पीपल आर डूइंग नाइस वर्क फॉर रियल. फॉलो, सब्सक्राइब और जो करना है वो कर दो, बट कर दो चलचित्र टॉक्स को. Hope you enjoyed this episode. This was a particularly heartfelt conversation for me, which will stay with me for many, many days. Also, let me know who else would you like to see on the show. If you're still watching, leave a comment below with the hashtag Desperate Housewives. And I'll see you soon. Bye.